صدیق کی اہلیہ اس ٹائم اس کی جو بیوہ ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اس سے بات کرتے ہیں۔ بہن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیا کوئی واقعی میں دشمنی کے بغیر یہ سب کچھ ہوا ہے، ایک حادثاتی طور پر ہوا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی آپ کے شوہر کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا؟ نہیں، کوئی دشمنی نہیں تھی ان کے ساتھ ہماری۔ انہوں نے بس جان بوجھ کے ان کو ساتھ ایسا کیا ہے۔ اچھا جی، ہماری کوئی دشمنائی نہیں تھی ان کے ساتھ۔ اچھا، آپ کے 6 بچے ہیں؟ جی، میرے 6 بچے 6 بچے ہیں۔ آپ کا شوہر ویسے کیسا انسان تھا آپ لوگوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ؟ وہ بہت اچھے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ بھی۔ کتنے سال ہو گئے آپ کی شادی کو؟ 18 سال ہو گئے، 19واں سال لگا ہوا ہے۔ 19 سال سے آپ اسی گاؤں میں موجود ہو؟ جی، اسی گاؤں یہیں میں پہ رہتی ہو؟ جی۔ تو اس سے پہلے کبھی ایسا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا؟ جی، ہمارا نہیں ہوا۔ آپ لوگوں کا نہیں ہوا؟ ہمارا نہیں ہوا، ان کا ہوا تھا۔ ہمارا کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ تو اب کوئی اپیل کرنا چاہتی ہو آپ اداروں سے؟ جی، میں اپیل کرنا چاہتی ہوں، ہمیں انصاف چاہیے۔ انہوں نے مجھے بیوہ کیا، میرے 6 بچوں کا یتیم کیا، ہمیں انصاف چاہیے۔ یہ آپ کی جو بیٹی ہے اس کو کیا ہوا ہے؟ اس کو اپنے پاپا کا اس نے صدمہ لیا نا، اس کی وجہ سے اس کا دماغ ہے، کبھی کوئی باتیں کرتی ہے، کبھی کوئی باتیں کرتی ہے۔ یہ اب اپنی صحیح پوزیشن میں نہیں ہے۔ کیا کہتی ہے یہ؟ کبھی کہتی ہے انہوں نے میرے پاپا کو ناجائز مار دیا، بس اسی وجہ سے اس نے نا بہت زیادہ صدمہ لیا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتی مجھے یہ بات کرنی ہے نہیں کرنی ہے، نا انصافی ہوئی ہے ہمارے ساتھ۔ بالکل، ہمیں انصاف چاہیے۔ اب بچوں کی کفالت کا کون ذمہ لیتا ہے؟ بچوں یہ کس طرح پلیں گے؟ آپ کے شوہر تو ماشاءاللہ بچوں کو یہاں پہ رہتے ہوئے پڑھا رہے ہیں۔ جی، میں پوچھا بچوں سے، سارے بچے پڑھنے والے ہیں؟ جی، سارے بچے میرے پڑھنے والے ہیں۔ ایک چھوٹی بچی ہے، اسے بھی اب داخل کروا دیا سکول میں۔ اچھا، جی، مطلب وہ پڑھانا چاہتے تھے اپنے بچوں کو؟ جی، انہیں ایک بہت، آدمی ایک شریف شہری جس طرح زندگی گزارتے اس طرح گزار رہا تھا۔ جی، اسے بہت شوق تھا اپنے بچوں کو پڑھانے کا۔ ادھر سکول 5 تک ہے، وہ پڑھانے میں اپنے بچوں کو لے کر جاتے تھے، لے کر آتے تھے۔ انہیں شوق تھا اپنے بچوں کو پڑھانے کا۔ جو میرا سسر ہے وہ دماغ سے مینٹل ہے بیچارہ، میری ساس بھی اس لائق نہیں ہے، بس میرا بیٹا ہے وہ 17 سال کا ہے ابھی، تو وہ کیا کر سکتا ہے ان کے لیے؟ کچھ نہیں کر سکتا وہ، مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جی، نہیں کر سکتا مقابلہ۔ اور ابھی ان کو 3 دن ہوئے فوت ہوئے، ان کی جو گھر والی عورتیں ہیں وہ ساری آ گئی۔ جی، نسیم بی بی کی جو بہو ہیں وہ ساری گھر آ گئی ہیں۔ کیا وہ کسی بکری کے بچے کو مار کر گئی تھی جو وہ ادھر آ گئی ہیں؟ قتل ہوا ہے اور پھر بھی وہ آ گئی ہیں، اور پولیس والے ان کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کو اندر بٹھا کر رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں نہیں ہے، وہ نہیں ہے، سب نے دیکھا ہے کہ وہ آئی ہیں۔ اچھا، پولیس والے ان کو تحفظ دے رہے ہیں؟ جی، ان کو تحفظ دے رہے ہیں، ان کی بھینسیں ہیں ان کا خیال کر رہے ہیں۔ یہ پیسے کی بات ہے نا، یہ پولیس والے؟ جی، پیسے کی بات ہے نا۔ پولیس والے آپ کسی کی مال ڈنگر کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ دیکھیں، ان کے مال ڈنگر کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کی عورتوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جب ہم لوگوں نے ہنگامہ کیا ادھر جا کے تو انہوں نے ان کو نکال دیا ادھر سے۔ یہ انصاف ہے؟ اب یہ مطلب آپ کو اگر وہ ادھر آئیں گے نا تو بچہ ہے میرا، چھوٹا بچہ، اس کا خون کھولتا ہے، بڑی مشکلوں سے اس کو روکا ہم نے، کل بھی بڑی مشکلوں سے روکا ہے، تو پھر وہ ادھر آ کر دوبارہ پھر قتل کروائیں گے، پھر دوبارہ خون خرابہ ہوگا ادھر، مزید لاشیں بچھیں گی۔ ہاں، پھر اس کا مطلب یہ نا کسی کی سپورٹ کی وجہ سے وہ ادھر آئے نا، اگر کسی کی سپورٹ نہیں ہوتی تو وہ کیوں آتے ادھر؟ یقیناً پولیس تحفظ دے رہی ہے ان کو، تحفظ دے رہی ہے، ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ آپ لوگوں سے پولیس نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے؟ جی نہیں، کبھی سنا ہے آپ نے کہ جو قتل کر جائیں اور ان کے بھینسوں کو چارہ ڈالتے ہیں، ان کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، وہ بھی پولیس ملازمین ہیں؟ کوئی سنا ہے آپ نے؟ نہیں، ہم اندازہ اور لگا سکتے ہیں آپ کی تکلیف کا۔ تیسرے دن ختم لگ رہا ہے اور ان کی عورتیں گھر آ رہی ہیں، یہ انصاف ہے؟ آپ کے ساتھ کوئی آخری اپنے شوہر کی کوئی بات آپ کے ساتھ ہوئی ہو؟ آخری میں تو اپنی امی کے گھر تھی، ہاں، مجھے وہ ادھر سے رات کو 11 بجے آئے تھے، کوئی بات نہیں، ہماری کوئی دشمنی نہیں تھی ان کے ساتھ۔ شوہر نے جانے سے پہلے کوئی بات کی ہو، وہ پھر ذہن میں رہ جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ آخری بات کر کے گئے تھے۔ وہ آخری بات انہوں نے کافی دیر تک
11 बजे तक हमारे घर बैठे रहे उधर। हाँ। अम्मी के घर बातें करते रहे। हाँ। तो आखिरी बार वो मुझसे, मैंने कहा मैं आपके साथ चलूं, तो उन्होंने कहा नहीं आप सुबह आ जाना, सुबह टाइम से ही आ जाना। और पता नहीं अल्लाह ने कैसी कबूलियत की घड़ी थी वो, और मैं सुबह 5 बजे अपने घर इधर आ गई। 5 बजे उन्होंने, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने जान से उनको मार दिया है। मैंने तो सुना था कि टांग में गोली मारी है। हाँ, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने जान से ख़त्म कर दिया उनको। ये नहीं पता था वापस आऊंगी तो पूरी दुनिया उजड़ गई होगी। जी, मुझे ये नहीं पता था। ये वो बेटी है जो ज़ाहिर है बाप का एक सदमा, और इस तरह के बाप का सदमा जो अपने बच्चों को इतने लाडों में रख रहा है। गांव में अगर स्कूल नहीं है तो गांव से बाहर लेकर जा रहा है अपने बच्चों की तालीम के लिए, कुछ बनाना चाहता है। अब ये वो बच्ची है जिसके जहन पर इस चीज़ का इतना असर हुआ है कि बकौल माँ के बकौल इधर के मौजूद रिश्तेदारों के, ये बच्ची जो है अब इस तरह की बातें करती है जिससे अंदाज़ा होता है कि बच्ची ने ज़्यादा अपने जहन पर इस चीज़ का सदमा ले लिया है। बात करते हैं इससे। क्या नाम है आपका? अच्छा, बाबा के बारे में आप क्या बातें कर रही हो मामा से? वैसे ही बस हमें इंसाफ चाहिए और उन्हें नाजायज़ मारा गया है। हाँ, ये बातें कर रहे हैं। बाबा की याद आ रही है? हैं? बाबा क्या बनाना चाहते थे आपको? टीचर। टीचर बनाना चाहते थे। आप भी पढ़ रही थी अभी? कौन सी क्लास में? 10 के पेपर दिए हैं। 10th के पेपर दिए हैं, तो अच्छे पेपर्स हुए थे? जी अच्छा। अभी आप आगे अब पढ़ोगी? जी पढ़ूंगी। पढ़ोगी, बाबा की ख्वाहिश को पूरा करोगी ना, है ना? अब बाबा वापस नहीं आएंगे लेकिन आप उनकी ख्वाहिशों को पूरा करके सुकून तो दे सकती हो ना उनको, है ना? और मामा का अपनी सहारा भी बनना है, ठीक है ना? नवीद और परवेज इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो दोनों शख्स हैं जो उस दिन वकूए पर मौजूद थे। जख्मी आप लोगों के सामने हैं। एक के सर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया है, दूसरे का बाजू डंडे मार मार के तोड़ दिया गया है, फायरिंग की गई अंधाधुंध वहाँ पर। अब वकूआ हुआ क्या, लड़ाई कैसे शुरू हुई, बात करते हैं। क्या हुआ था वहाँ पर? लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई, सीधे सीधे फायर खोल दिए गए आप लोगों के ऊपर, कुल्हाड़ी के वार किए गए। बड़ा भाई और से भाई बरकत और जवेद भाई ने पानी लगाया हुआ था। अच्छा। उसके बाद वो पहले शहबाज आया था, उसने कहा था यार क्या मसला है, पानी क्यों लगाया हुआ? भाई ने कहा था यार आपसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हाँ। जिसने आपको पैसे दिए, आपने जिसको पैसे दिए है ना उस्मान वगैरह को, अच्छा। उसको लेके आए, उससे कि हमें कब्जा दे, हमारी जमीन हम पानी लगाएं चाहे कुछ भी करें। हाँ। वो चला गया। वहाँ पर से 10 या तकरीबन 10-15 मिनट के वक्त के बाद आए हैं दोबारा, और असला वगैरह लेके आए। पिस्टल, उनकी माँ थी उनके साथ, तीनों भाई थे, एक भांजा था। अच्छा। आए दो हरफी बात की है, उसके बाद उन्होंने फायरिंग अंदर कर दी, शुरू कर दी है। उन्होंने क्या बात की आगे? बात की थी उनके यहाँ से चले जाएं वरना फायरिंग शुरू कर दी थी। ये जमीन किसकी है असल में? ये असल में हमारी जमीन है। हमने भाई ने पैसे, जी भाई ने 1.25 करोड़, 2 एकड़ है। 2 एकड़ जमीन हाँ जी, है। भाई ने भी 1.25 करोड़ रुपए दिया हुआ है। किसको दिया? बहनों को दिया हुआ है पहले। भाई ने अपनी बहनों को ये जमीन उनसे ली है? जी ठीक है। और उनको कितने पैसे दिए? 1.25 करोड़ रुपए। 1.25 करोड़। उसके बाद ये जमीन भाई को क्यों नहीं मिली? भाई ने उन पैसे भी भाई से ले लिए और वगैरह उस्मान वगैरह को सेल कर दी है, भाई को नहीं दिए। उस्मान वगैरह जिन्होंने मारा है आकर? नहीं, वो दूसरा है, वो सोडे का। हाँ जी, उसको सेल कर दी है। किसी और, मतलब 2 जगह से बहनों ने पैसे उठा लिए। हाँ जी। ये बहनों ने भाई को धोखा दिया? जी। कितनी बहनें हैं? 3 बहनें। इस टाइम तो 2 बहनों ने धोखा दी है। 2 बहनों को ये इनका हिस्सा था जमीन? हाँ जी। और इन्होंने भाई से पैसे भी ले लिए, भाई को जमीन दे दी। ठीक है। और उसके बाद जमीन कहीं और भी बेच दी। किसी और को अब सेल जिसको कर दी। बेची है वो कहता है कि जमीन मेरी है। जी। और आप लोगों ने खरीदी हुई, आप लोगों को लगता है हमारी है। जाहिर सी बात, हमने पैसे दिए तो हमारी हुई ना। 1.25 करोड़ रुपए हाँ जी दे दिया हमने। ये देखा भाई है छोटे, उसके मकान तक नहीं है, बच्चे उसके छोटे छोटे रह गए, तो क्या क्या रह गया हमारा? ना भाई रहा, उसके 7 बच्चे हैं उसके। ये उस भाई का मकान है जिसने 1.25 करोड़ रुपया दिया? जी। 1.25 करोड़ रुपया कितनी जमीन का? 2 एकड़। 2 एकड़ का। 2 एकड़ जमीन का 1.25 करोड़ रुपया दिया है। और ये जो घर है, ये घर नहीं है, ये एक खुला मैदान है जिसके अंदर उसके अब बच्चे जो हैं वो जिंदगी गुजारेंगे। किचन की हालत में आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर कोई कैसे खाना बना सकता है। धूप हो, छाँव हो, गर्मी हो, सर्दी हो, इस खुले सहन में जिंदगी गुजारनी है। जी। सिर्फ बहनों की ये मेहरबानी है। बहनों की वजह से, और क्या, बस यही है ना। जो सदीक है जी, वो मौके पर ही मौके पर फौत हो गया था। उसकी तो कोई लड़ाई नहीं थी ना? उसकी लड़ाई कोई नहीं, वो बेचारा बस ये समझ ले वो आ गया था, मुझे चारे वगैरह काटने के लिए आया था। वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने उसी को, सदीक को फायर मारा। आपके सर पर क्या मारा गया? मेरे कई वगैरह मारी। ये जो इनकी माँ है, ये क्या कोई, ये कौन? माँ खुद ही गुंडी बन के आई थी, कोई तोड़े वगैरह में असला लेके आई है। ये क्यों है गुंडी? इसको किसने बनाया गुंडी यहाँ पर? खुद ही बेटों को सर पर बनी हुई है ना,
दो बेटे, एक एलीट में है, एक पंजाब पुलिस में है, इतना उनकी असला, वजह से। मैं ये एक सवाल आप लोगों से बार बार पूछ रही हूँ, इनके पास असला कहाँ से आता है इतना? जाहिर सी बात है ये पुलिस में है तो उसकी वजह से लेके आता है, नजायज असला रखा हुआ है ना, नजायज असला रखा हुआ है ना। पुलिस वाले हों तो बोरियों में तो नहीं ना असले आते, नजायज असला रखा हुआ है ना। बिल्कुल आप जी। वहाँ पर मौजूद थे, इनको दो माइक जरा। आपके साथ इस तरह, आपको अल्लाह का शुक्र है आपको तो कोई गोली वगैरह नहीं लगी, बाजू में चोट लगी है। आपको भी मारपीट हुई है, डंडों से भी मार रहे थे, गोलियां भी चला रहे थे। मैडम उनके पास 3 पिस्टल हथियार से सब। और आप लोगों के पास, मतलब आप लोगों को तो हम पता भी नहीं होगा। इस मिशन पर हम नहीं गए थे ना। हमारा तो कोई लड़ाई वगैरह कोई चल नहीं। पहले जब लड़ाई हुई है आप लोगों की, वो खत्म हो गई थी ना, ये लोग वापस आ गए, हाँ जी। फिर ये माँ की शय पर वापस दोबारा गए हैं। तकरीबन 10 के 15 मिनट के वक्त के बाद दोबारा आए हैं। अच्छा, उसके बाद आए तो उन्होंने, उनकी माँ ने तोड़े में रखा हुआ था, पिस्टल वगैरह थे, डंडे वगैरह थे। तीनों भाई थे, शहबाज, एजाज और नवाज, एक उनका भांजा था यूसुफ असलम। उन तीनों के पास पिस्टल थे और भांजे के पास डंडा था, तो कई थी। यूसुफ ने कई मेरे सर पे लगाई है, सदीक है जौन सा, उसको फायर मारा है उसने, एजाज ने लीट में जौन सा। अच्छा, और जो जवेद भाई है, ये ऑन ड्यूटी है? हाँ जी ऑन ड्यूटी था उस टाइम। अच्छा, तो यूसुफ है जो, उसने वो शहबाज है, उसने फायर मारा है जावेद भाई को। नवाज है उसने मारा है भाई बरकत को। यूसुफ ने पीछे से अभी मेरे सर कितने पर। लोग, दो लोगों की तो डेथ होगी ना? दो हाँ लोग जी, तो 2 हो गए, फौत एक हो गए। हॉस्पिटल में है, एक हॉस्पिटल में है, जी। और 2 हमें, 2 भाइयों को चोट लगी हुई जो उस टाइम आपके सामने। मतलब 5 लोगों के साथ हाँ जी। इन्होंने ये सब कुछ किया। आप लोग 5 लोग थे बिल्कुल। खेतों में, यकीनन कोई खवातीन होती, बच्चे होते, तो ये जाहिर तो सी सब बात है वो उन्होंने अंधाधुंधे फायरिंग की है। तो अगर वगैरह और कोई भी होता गांव में, दूसरे बेचारे होते, सब तो जाहिर जख्मी होने थे, हम फौत होने, जो भी कुछ होना था ना, उन्होंने तो अंधाधुंधे फायरिंग की है ना। कितने बच्चे हैं इनके, जिनके घर में भाई जवेद के 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं और उनकी बेवा। जी। अब घर में कमाने वाला कौन है? कोई भी नहीं, बच्चा एक छोटा है, लेकिन जवान बेटियां हैं उनकी। ये बेटा है, जी। मतलब सिर्फ एक ये बेटा है जवान, बाकी बच्चे छोटे हैं हाँ अभी। जी। बेटा आप क्या काम करते हो? कोई काम पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 10th क्लास में पढ़ते हो। तो बाबा मतलब अब नहीं है, अब घर का सर्कल कैसे चलेगा? अल्लाह ही वारिस है उसका। ये जो आपके फुफ्फो जो हैं, आपकी फुफ्फो ने ये जमीन बाबा को दी थी, जी। ठीक है, आपको इस बात का पता है? नहीं पता। बाबा ने इस जमीन के पैसे दिए, आपको इस बात का पता है? नहीं पता। तो ये अब दोबारा एक नई जंग छिड़ जाएगी, बच्चों को नहीं पता। ये तो पुरानी नस्ल के फैसले है ना, ये तो बड़ों के फैसले थे, खत्म हो गए ना बड़ों के साथ ही। उनके सामने उनके बाप की कत्ल हो गया, मर्डर हो गया ना, तो जाहिर सी बात दुश्मनी खून में बनेगी ना। उन बच्चों को सर पर तो होश संभालने का, तो उनके बच्चों का बाप नहीं है सर पर, जाहिर से बहनों की वजह से हुआ ना। किधर है ये दोनों बहनें? अब ये मनिहाले के साथ नत्थों की गाँव, पता नहीं अब किस टाइम में, कोई पता नहीं उनका। बहनें आई थी इस मौके पर? नहीं, अभी भी आना था उन्होंने। बहनें नहीं आई मौके पर? बहनों का भाई इस दुनिया से चला गया, बहनें नहीं आई। ये जायदाद के और ज़मीनों के जो मामले होते हैं ना, इस वजह से कहा जाता है कि आपके पास दौलत हो, ज़मीन हो, इस तरह की चीज़ें हो, आप लोगों के खून से फैद हो जाते हैं।